dual nature of radiation and matter. Okay, हम लोगों ने क्या देखा है? What we have seen till now, we have seen that what is work function. We know that for a material, for a metal, एक मेटल के लिए अगर आप इस मेटल में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं, if you want to remove the free electrons out of this metal, you need to supply it certain amount of energy, isn't it? You need to supply it certain amount of energy, and that energy is either in the form of incident light or in the form of temperature or in the form of electric field. ठीक है, ये तीन तरीकों से आप इसको एनर्जी दे सकते हो. So in what sense that energy is spent? That energy is spent लास्ट में मुझे 10 मिनट तक समझ नहीं आया सर, कल के लेक्चर में मुझे लास्ट 10 मिनट तक समझ नहीं आया. So after today's lecture I would be here for 10 minutes, so you can definitely be there विजेंद्र, और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, you can clear all of your doubts in that time. Okay, so what is work function? Work function is the minimum amount of energy which is required for what? Which should be given to this metal so that this electron comes out of this metal. इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर आ जाए, इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के बाहर आ जाए. ठीक है, किन बातों पे वर्क फंक्शन डिपेंड करता है? On what points the work function depends? First, it depends upon the property of the metal. Second, it depends upon the nature of the surface, कि surface जो है smooth है कि polished है, isn't it? Okay, so what are the ways of removing the electron? What are the ways of removing the electron? We have seen three ways. पहला, दूसरा और तीसरा, isn't it? First was, let's say, thermionic emission, then photoelectric effect and electric field. So this was about the recap. Now let's get ahead. We are getting into photoelectric effect now. अब हम लोग photoelectric effect के अंदर घुस रहे हैं. ठीक है, so be ready. This was the experimental setup. Here we had a metal, okay, which behaved as a cathode, and here was another metallic plate जिसको कि आपने opposite charge देके रखा था, opposite polarity देके रखी थी, so that it attracts the electrons. Okay, now see setup कैसा था? What was the setup? You can see it in the diagram over there. See, this is a vacuum tube. Okay, here we have a photosensitive plate. Photosensitive का मतलब क्या है? What do you mean by this word photosensitive? Which is sensitive towards light. By photo we means light, photons means जो आने वाली light है ना. So photosensitive plate एक ऐसी plate जो कि energy आने पे in the form of light, when you supply energy, it would emit electrons. So these are the electrons which are being emitted. You can see it over there. ये material, light आई, electrons निकले, opposite metallic plate पे गए, circuit complete हुआ. Okay, this is what we have seen. So photosensitive plate, metal plate which behaves as an anode, and there's a quartz window. एक window है जिसमें से कि light enter हो रही है. Okay, there's a window through which light is entering. Okay, now see, what are we discussing? What is the first important point that we have to discuss? पहली important बात हमको क्या डिस्कस करनी है? We can use this experimental arrangement to study the variation of photocurrent with, see, सर्किट में आपको करंट मिल रहा है, सर्किट में करंट मिल रहा है. क्यों मिल रहा है करंट? This is the quartz window that I have discussed, जिसमें से कि लाइट एंटर हो रही है. ये रही आपकी वैक्यूम ट्यूब. ठीक है स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों बोलो. And this is the plate. This is called acceptor plate. ठीक है, ये इधर जो है फोटोसेंसिटिव मटेरियल है. यहां पे से आ रही है लाइट यानी रोशनी के साथ कौन आए? फोटॉन्स आए. ये आ गई रोशनी. ठीक है, ये इधर टकराई. एंड कोई सा भी मेटल ले सकते हैं. राइट नाउ वी आर नॉट स्पेसिफाइंग विद द मेटल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पॉइंट इज. ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, एंड दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट. हाँ या ना? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, कलेक्टर की तरफ गए. नाउ देयर वुड बी अ फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो करंट मिलेगा आपको. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको ये देखना है कि ये जो करंट आपको सर्किट में मिल रहा है, लेट्स से आई हैव प्लेस्ड एन एमीटर, ठीक है, और माइक्रो एमीटर ओवर हियर.
सो हाउ दिस करंट वेरीज, ये करंट वेरी कैसे करेगा, किन बातों पे डिपेंड करेगा? इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, if I increase the intensity of the incident light, how is the current going to vary? How is the current going to vary? If I apply some external potential, let's say I have applied a potential, सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है? मैंने यहां पे एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया, अब क्या इफेक्ट होगा? I have reversed the direction of the potential, I have reversed the direction of the polarity of this battery. Now what would be the effect? ये बातें हमको समझनी है, ठीक है? डायरेक्टली इंक्रीज डिक्रीज अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, नहीं, अभी ज्ञान आपने बहुत ज्यादा मिस नहीं किया, लेकिन पॉइंट ये है कि आप 8 मिनट लेट हो तो बिल्कुल सही टाइम पे आया करो, बी ऑन टाइम, एग्जैक्ट ऑन टाइम, ओके? नाउ लिसन, लाइक इफ आई टेल यू, जब हमारी क्लास हुआ करती थी 1 मिनट के बाद हमको एंट्री नहीं मिलती थी. इट यूज्ड टू बी 6 AM in the morning and after let's say 6:05 doors were closed, किसी को एंट्री नहीं मिलती थी, ठीक है? Anyways, so see what we are seeing, we were discussing photoelectric effect, हम लोग photoelectric effect डिस्कस कर रहे हैं, and we are trying to discuss the variation of photocurrent, that means the current that you are getting in the circuit में जो current मिल रहा है, इस current का variation आप देखेंगे सबसे पहले intensity of radiation के साथ. After that, if you apply some external potential, what would be the difference created? After that, frequency of incident radiation and the nature of material of that metallic plate. These 4 things we have to study one by one. So we are starting with the intensity of radiation. ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी तक कुछ सिखाया नहीं है मैंने. I am starting with the intensity of radiation. Okay. So I would again give you a realistic example. First of all, I want to know that what is intensity. I want to know it from you. What is intensity? Intensity क्या होती है भाई साहब, बताइए. What is intensity? यहाँ पे किसकी इंटेंसिटी की बात चल रही है? We are discussing about the intensity of the incoming light. Very good, Harshul. It is energy per unit area. It is the energy which is falling per unit area per unit time. ठीक है, energy which is falling per unit area per unit time. Okay, this is what we call as intensity. एनर्जी जो लाइट की आ रही है वो किसके टर्म्स में स्टडी करते हैं? द एनर्जी ऑफ इनकमिंग लाइट इज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ photons. We assume that there are some particles, छोटे पार्टिकल्स हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं, ठीक है, बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं, which is what we call as photons. What are these photons? ये photons क्या होते हैं भाई साहब? These are the packets of energy. Okay, this is very important. ये जो पूरी डिस्कशन है क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम फिजिक्स का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज दैट द इंसिडेंट लाइट विच इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ये जो हमारे सामने लाइट आ रही है, this is made up of some very small particles which is what we call as photons, and these photons are packets of energy. These are bundles of energy. और ये रहे photons, these are the photons. Okay, ये हैं photons. If I tell you, if I give you a live example, you can imagine that let us see कि जैसे कई बार आपने टीवी में देखा होगा that if there is some natural disaster over some place, सुनामी आ गई या तो अर्थक्वेक आ गई, तो हेलीकॉप्टर से जो हेल्पिंग टीम निकलती है, they do the food distribution, खाना बांटते हैं वो लोग, है ना? तो वो लोग खाना कैसे बांटते हैं? ऐसा करते हैं कि ऊपर बहुत टैंकर भर के दाल ली और ऐसे फेंक दी, इतने सारे कढ़ाई भर के चावल लिए फेंक दिए, 1000-2000 रोटियां हवा में ऐसे डाल दी, ऐसे करते हैं क्या? दिस इज नॉट व्हाट दे डू ना. व्हाट दे डू, वो पैकेट बनाते हैं, छोटे पैकेट, और वो पैकेट जो है थ्रू आउट ऊपर से गिरते जाते हैं, लोग कैच करते जाते हैं नीचे. दैट मीन्स एवरी पैकेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड, एवरी पैकेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. सेम विद द लाइट. लाइट में फोटॉन्स है और फोटॉन्स में हर फोटोन में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है. गेटिंग द पॉइंट? हर फोटोन में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है. एंड फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी. क्या कहते हैं इनको? बंडल्स ऑफ energy. This is what we term as photon. And the incident light, the incoming light, consists of photons. So the intensity, sir, concept क्या है? Concept तो बताओ. Concept ये है कि जो intensity है, this is nothing but the number of photons
which fall per unit time, per unit area, isn't it? Area में मान लो कि किसी unit area की हम बात कर रहे हैं. So the number of photons which are coming per unit time, this decides the intensity of light. This decides the intensity of light. समझ रहे हैं हम बात को? Frequency is a different parameter. Frequency अलग बात है, intensity अलग बात है. पहले बोलना पड़ेगा intensity समझ में आई? Are we clear with the intensity concept? That if there are two lights, दो रोशनी है, एक लाल और एक नीली. Okay. So the one which is having more photons attached with it is what we call as it is having more intensity. Okay. And in photoelectric effect, बात समझना what is happening. Let's say this is the material. This is the photosensitive material. Okay, this is the material, metallic plate. ठीक है. You have illuminated it with some light. ये रही light जो कि आ रही है. Light आ रही है मतलब कौन आ रहा है? Photons आ रहे हैं ना? हाँ या ना बोलो. ये रहे photons. दिख रहे हैं? दिखने लग गए photons. ठीक है, photons. ये चलते हुए आ रहे photons. Now what is happening? There are electrons within this metal. There are free electrons within this metal. Okay. There are free electrons. ये रहे free electrons. बहुत सारे बैठे हुए अंदर, मजे से बैठे हुए. क्या कर रहे हैं? नाच रहे पागलों की तरह इधर से उधर, random motion कर रहे हैं. Okay. So what these electrons would do? They would take energy from the photons only if the frequency of the incident light is greater than the threshold frequency. Okay. Only if the frequency is greater than the threshold frequency, the photons, the electrons would absorb the energy of photons. ठीक है? तो ये photons की energy इन्होंने ले ली. ठीक है? They took the energy. Okay. And what happened? ये बाहर निकल गए. ठीक है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. Getting the point? लाइट आई, रोशनी आई, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, वैसे ही बैठे थे कि चलो कोई आए लेके एनर्जी लेके आए तो हम निकल जाए, बैठे ही हम तो भागने के लिए. ओके, सो इट टुक द एनर्जी एंड इट इजेक्टेड. ओके, तो ये एक बात हुई. नाउ देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो दैट हाउ मेनी फोटॉन्स इजेक्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है यार विजेंद्र, दुनिया भर की सारी समस्याएं तुम्हारे ही साथ क्यों होती हैं? Why there is every single problem linked with you only? Voice not clear, audio not clear, video not clear. क्यों भाई? Please check the connectivity. विजेंद्र, कहाँ समस्या जा रही है समझो. नेटवर्क अच्छा लगवा लो घर पे. ठीक है, जियो वगैरह में अगर मजा नहीं आ रहा है तो चेंज कर लो. वाईफाई चेक कीजिए, डिवाइस चेक कीजिए. बोलो. सुनो, बाकी सब लोग सुनो, बाकी सबको दिख रहा है? रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, कैन यू सी? सर. हाँ विजेंद्र. सर आपका ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर नहीं आ रहा है. हो कल भी क्यों हो रहा है? आप एक बार करो कि किस पे चलाते हो, लैपटॉप पे चलाते हो कि मोबाइल पे? सर फोन पे ना. तो लैपटॉप है क्या तुम्हारे पास? यस सर. तो एक बार उस पे ट्राई करके देखो ना. फोन पे कई बार होता है, थोड़ा सा लफड़ा होता है, कई बार प्रॉब्लम होती है. और व्हाट यू डू इज ना कि टेक टीम में आप एक बार लैपटॉप पे चलाओगे ना, सो यू कैन डाउनलोड एनीडेस्क ऐप. एनीडेस्क एक जो है ऐप होती है. सो द वेदांतु टीम कैन एक्सेस योर लैपटॉप फ्रॉम देयर एंड दे कैन फिक्स दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन. समझ रहे हो बात को? सर कल भी मैं इस वजह से क्लास ठीक से अटेंड नहीं कर पाया था. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार आप कर लोगे ना तो आपका हमेशा का लाइफ भर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, रोज का जो आपकी प्रॉब्लम जा रही है ना वो एक बार में क्लियर हो जाएगी. सर अभी क्या करूं? हाँ, मतलब वेदांतु टीम का आपके पास नंबर है ना? यस सर. हाँ, एक बार उनको कॉल करके बताओ कि ऐसा इशू जा रहा है. दे वुड बी चेकिंग द सिग्नल स्ट्रेंथ और जो भी टेक्निकलिटीज होती है मुझसे ज्यादा बेहतर वो बता पाएंगे. ठीक है सर. मैंने 2-3 बार रिफ्रेश भी कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ. हाँ, कोई बात नहीं. तो एक बार उनसे बात करो. ठीक है, दे वुड गाइड बेटर और डेफिनेटली दे वुड सॉल्व इट सो दैट फर्दर सेशन से हमारी ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. गेटिंग द पॉइंट? ओके सर. एक बार रिजॉल्व कर लोगे तो हमेशा का काम हो जाएगा. ओके, नाउ सी क्या कह रहा था मैं कि देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो कि अच्छा अगर इतने फोटॉन्स आ रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. ओके, सी
there is no fixed ratio that these much photons are coming, so these much electrons would be going out, but we consider that one photon is corresponding to one electron. One photon is corresponding to one electron. Okay, so now I am asking you a logical question. अब मैं आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं. See, my question is, if अगर आपने मेरा शब्द ध्यान सुने होंगे, मेरे शब्द ध्यान से सुने होंगे, that one photon is corresponding to one electron which is ejected. So if I increase intensity of incident light, what will be the effect on current? What will be the effect on current? A option increase, B option decrease, C option remains constant. लिखना नहीं है, हॉटपॉट दे रहा हूं ना मैं. remains constant. D option independent of intensity. ठीक है. A B C D, जल्दी बताओ क्या आंसर होना चाहिए. जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए. What should be the answer, all of you? ये विजेंद्र को ऐसी बातें सारी सुनाई दे देंगी है ना. हॉटपॉट है कि हॉटस्पॉट है, काम की बात सुनाई नहीं देगी इस लड़के को. अब नेटवर्क चल रहा है बिल्कुल मजे से. हाँ, तो ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा. व्हाट वुड बी द आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर? ए. सी, 86.21% gave the correct answer. 86.21% gave the correct answer. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. If light of greater intensity is coming, that means more photons would be coming. That means more electrons would be ejected. That means there would be number of electrons in the circuit would increase. That means the current would increase. Okay. So the first point we have directly understood, the intensity of radiation is directly proportional to the photo current. ये पहली बात है. ठीक है. अब हम लोग क्या समझेंगे, आगे की बातें समझते हैं. ये बात क्लियर है? Is this thing very clear? So see, effect of intensity of light on photocurrent. The collector A is maintained at a positive potential with respect to emitter C. Okay, so that the electrons ejected from C are attracted towards the collector. ये जो collector है, you have maintained it at a पॉजिटिव पोटेंशियल. वाई? सो दैट इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. कलेक्टर क्या होता है? कलेक्ट करने का काम करता है. जितने इलेक्ट्रॉन्स, सी मैं आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन बताऊं ना क्या होता है. द मोमेंट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स ना थोड़े से डम होते हैं. इनको पता नहीं होता कि जीवन में करना क्या है, तो यहाँ भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं. ये भीड़ लगा के खड़े हो गए यहाँ पे. अब इनमें से 2-4 ही ऐसे समझदार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिजेक्टेड, but only a few electrons are there which travel with some high speed and reach the another plate, collector plate. Okay, so in order to attract more number of electrons, okay, we need positive potential over here. ठीक है. चाइना क्वार्ट्ज प्लेट का कोई ऐसा अलग से बहुत ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, because it is just a material which is kept over the passage so that only the sort of radiation center which you want, जिस तरह की लाइट आप एंटर करवाना चाह रहे हो, सिर्फ वो सिलेक्टिवली उसी को एंटर होने देगा. ओके, वो नहीं भी हुआ, नॉर्मल एक ग्लास हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. नाउ सी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पॉजिटिव टर्मिनल ओवर हियर? इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, खींचता है उनको और खींच के वापस उस तरफ ले आया. नाउ इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, द करंट वुड इंक्रीज. कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फिक्स. 2 बातें फिक्स कर दी बेटा आपने. कौन सी 2 बातें फिक्स कर दी आपने? What 2 things you have fixed? First thing that you have fixed is the frequency of light that is coming, isn't it? The frequency of light that is coming. आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, you have just increased its intensity. That means same nature of light is coming but with different intensity. मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं, frequency is same. Also the potential that you applied over here is constant. ये दोनों चीजों को कांस्टेंट रखते हुए अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, इंटेंसिटी
So what would happen? The photo current would increase. It is proportional to the current. ठीक है? I hope this thing is very clear. So what would be the graph? This is the very simple graph for photo current versus intensity. Okay, photo current versus intensity of light. Since the intensity is proportional to the number of photoelectrons, and that's why more number of electrons would be ejected. So this is the very simple logic. NCERT में भी ये बातें बहुत clearly दी हुई हैं, and that's why I'm saying it is very important. Directly graphs इसमें से पूछ लिए जाते हैं, direct statements इसमें से पूछे जाते हैं. Okay, so these things are very important. Okay, now see, आगे बढ़ते हैं. Effect of potential on photoelectric current. Now see, I am asking you a question. Let me ask you a question. You have fixed the frequency. हाँ, डेफिनेटली नीलाभ, जो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग वेरी करेंगे. एट द मोमेंट हमने फिक्स करके रखी है. नाउ सी, माय क्वेश्चन इज, इफ यू फिक्स द फ्रीक्वेंसी, there are some electrons which are definitely going from the emitter plate to the collector plate, isn't it? This is collector, this is emitter. Okay. If you increase the potential, positive potential यहां पे increase होता है, तो क्या होगा? What would happen if you increase the potential? सोचिए. आपने सब फिक्स कर दिया है, आपने इंटेंसिटी को भी फिक्स कर दिया, आपने फ्रीक्वेंसी तो फिक्स करके ही रखी है. दैट मींस द लाइट विच इज कमिंग, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बट यू इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल. सो व्हाट वुड बी द इफेक्ट? बोलो, व्हाट वुड बी द इफेक्ट? क्या डिफरेंस देखिएगा कहानी में? करंट वुड इंक्रीज, डेफिनेटली करंट वुड इंक्रीज. व्हाई द करंट वुड इंक्रीज? व्हाई? लॉजिक. व्हाई द करंट वुड इंक्रीज? ओके, आई एग्री दैट द करंट वुड इंक्रीज. मैं मानता हूं कि करंट बढ़ेगा, लेकिन कारण, व्हाई द करंट वुड इंक्रीज? हाँ, बिकॉज इट वुड अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे सर्किट में. डेफिनेटली इफ देयर इज मोर पॉजिटिव चार्ज, इट वुड अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड डेफिनेटली करंट वुड इंक्रीज. ओके, सो इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, मैं बढ़ाता जा रहा हूं पोटेंशियल, मुझको तो लालच आ गया कि हम तो पोटेंशियल बढ़ाते जाए, करंट बढ़ता जाएगा. ओके, आई बिकेम ग्रीडी दैट इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, द करंट वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो क्या बढ़ता ही जाएगा करंट? इनफाइनाइट वैल्यू पहुंच जाएगी करंट की बढ़ते? सोचो. डेफिनेटली नो. वो बेचारा मेटल बेचारा मर जाएगा. वो उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक फिक्स्ड कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स देने की एक लिमिट होती है ना. सैचुरेशन लेवल तक पहुंचेगा, एंड आफ्टर दैट द करंट वुड बी सैचुरेटेड. आफ्टर अ सर्टेन लेवल, नहीं, जीरो नहीं हो जाएगा, करंट वुड बी सैचुरेटेड. करंट जो सर्किट में आ गया है ना, वो तो फ्लो होता रहेगा ना, डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं करंट. जो सर्किट में करंट एक बार जनरेट हो गया, उतना करंट मैक्सिमम पहुंच के इट वुड रिमेन एट अ सैचुरेशन लेवल. सो आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट, यू वुड रीच अ सैचुरेशन करंट. ओके, नाउ सी व्हाई दिस ग्राफ इज ड्रॉन लाइक दिस. इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बात सुनना. व्हाट इज दिस V? व्हाट इज दिस VAC? What is this VAC? VAC क्या बेटा? This is VAC. This is applied potential. Okay, across the anode and cathode. ठीक है? अरे यार, तुम क्विज कब होगा? नहीं होगा आज क्विज नहीं है, तो क्या पढ़ाई नहीं करोगे? इतनी काम की बातें बता रहा हूँ. क्विज कब होगा, ये कब होगा, किसी बातें करते हो यार. तुम बच्चे हो क्या बिल्कुल छोटे? 12वीं क्लास में बैठे हो, 12th क्लास, बिल्कुल केजी वालों जैसी हरकतें कर रहे हो. क्विज कब होगा? भूख लगी है, वॉशरूम जाना है. प्यास नहीं लगी है? भूख नहीं लगी अभी तक? अरे क्विज होगा ना, शांति तो रखो. अभी पढ़ा रहा हूं, लिंक मत तोड़ा करो तुम लोग. सुनो भी बात ध्यान से. क्या बोल रहा था मैं? मैं बोल रहा था, आई वाज डिस्कसिंग पोटेंशियल. ये देखो. पियो, तुम भी पानी पियो, मैं भी पानी पीता हूँ, फिर एक साथ जो है वॉशरूम का पूछना सब लोग. तो क्विज का एक सर्टेन टाइम होगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, तब क्विज आएगा ना. हाँ या ना? हाँ, तो विजेंद्र से उल्टे सीधे चेहरे मत बनाओ, समझो बात को. जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है? क्विज आएगा, अभी बहुत सारे क्विज हैं. फिर जब क्विज आएगा तो गलत जवाब दोगे. ओके, तो अभी समझो इंपॉर्टेंट बातें हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ सी,
what am I saying? This potential, this applied potential VAC, okay. This VAC, if VAC is 0, ठीक है, if VAC is 0, अगर VAC 0 है तो क्या करंट 0 होगा सर्किट में? If VAC is 0, now give me the answer. If VAC is 0, will the current be 0 in the circuit? Yes or no? Yes or no? बताइए विजेंद्र, yes or no? If the applied potential is 0, if the applied potential is 0, will the current be 0? नहीं। देखा, क्विज चाहिए था ना, अभी मिल गया क्विज। गलत जवाब दे रहे हो सबके सब। ध्यान रखो, तुमको लग रहा है मजाक चल रहा है। इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें सारी, समझ रहे हो? अटेंशन यहां रखो भैया। मैंने तभी भी जब हम लोगों ने कोई अप्लाइड पोटेंशियल नहीं लगाया था, स्टिल देयर वाज करंट इन द सर्किट, isn't it? When there was no applied potential in the circuit, there was still some current. If you don't apply any potential, still some of the electrons would be traveling from the anode, from the cathode to the anode. हाँ या ना? रिया, काम की बातों पे ध्यान दो, यहां ध्यान दो अभी। Vishaka is asking something. What are you asking? Sir, difference between photoelectric and photovoltaic. Photoelectric means light के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिलना, करंट मिलना, एंड फोटोवोल्टेइक जो है that also means the same. That means photosensitive potential generation. Okay. अब मैं बात क्या बोल रहा था मैं? I was saying that if you don't apply any potential, यहाँ पे V applied potential 0 है, कोई potential आपने नहीं लगाया, still some of the electrons are reaching from the one end, from the emitter to the collector. एमिटर से कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, सारे नहीं पहुंचेंगे। मैंने कहा था कि वो जो है यहाँ पे इस जगह पे बहुत सारे एक्यूमुलेटेड रहेंगे। 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स 90% of the electrons are over here. Only a few electrons reach from this end to this end. Okay, that's why we have to apply potential. But the question was, Umesh, question ये था कि if the applied potential is 0, the question was that if the applied potential is 0, will the current also be 0 in the circuit? Will the current also be 0 in the circuit? So all of you gave the answer is yes. But the answer is no. करंट तो होगा ना भाई, कम करंट होगा लेकिन करंट तो होगा। अरे हाँ या ना बोलो। पोटेंशियल 0 रखा लेकिन लाइट तो भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं, करंट तो होगा सर्किट में। बट इफ यू अप्लाई द पोटेंशियल, the current would increase. Concept समझ रहे हो? Getting the point? Yes, only with positive potential. Okay, it would increase, and only if you apply positive potential. If you apply opposite potential, सुनो मेरी बात, if you apply opposite potential, आपने negative potential लगा दिया यहाँ पे, what would happen? आपने negative potential लगा दिया, क्या होगा? Students, quickly, if you apply negative potential over here and positive potential over here, polarity बदल दिया आपने applied potential की, अब क्या होगा? नहीं, 0 एकदम से नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहा है, यहां से भागना चाह रहा है, ये रोकेगा, इसको बोलेगा रुक जा। ये इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, नहीं मैं आगे जाऊंगा, रुक जा, आगे जाऊंगा, नहीं रुक जा। फाइनली एट सर्टेन वैल्यू ऑफ ऑपोजिट पोटेंशियल ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जहां पे कि सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? या तो ये बात है, समझ रहे हैं बात को आप लोग? वेरी नाइस। तो पहले बातों को समझा करो, सवाल तो करेंगे हम लोग, काफी सारे सवाल करने हमको। सी, so this is the graph that I was discussing. केशव, okay केशव, that बात ये बोल रहा था मैं, that if no applied potential is there in the circuit, still there would be some current. This is applied potential. Okay, this is applied potential, still there would be some current. If you increase the polarity, if you increase the value of potential, positive potential बढ़ा दो, करंट बढ़ेगा और उसके बाद एक सर्टेन लेवल तक आके स्टेबल हो जाएगा। क्यों भाई केशव? बट इफ यू अप्लाई द पोटेंशियल इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ यू रिवर्स द पोलैरिटी, कि बैटरी अगर ऐसे लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, सो इफ यू रिवर्स द पोलैरिटी, अपोजिट कर देते हो, ठीक है? सो इफ दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज पॉजिटिव,
this is negative potential. Okay, then what would happen, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, बोलेगी नहीं तुम आगे मत आओ, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं मैं आगे जाऊंगा, ये बोलेगी नहीं मत आओ, आगे जाऊंगा नहीं मत आओ. फाइनली एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ ऑपोजिट पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन मोशन वुड सीज. दैट मींस एक सर्टेन वैल्यू पे आके करंट जीरो हो जाएगा. ऐसा बनता है इसका ग्राफ. एट द मोमेंट वी आर ओनली डिस्कसिंग if applied potential is zero, there is still some current. If you increase, it goes like this to a saturation level. ठीक है? What is commutator in the circuit? देखो बात क्या होती है कि जो मैं polarities change कर रहा हूं ना, अभी ना I am changing the polarities ना of battery. It's a two-way switch. ऐसा switch है. सुनो मेरी बात. इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया. If I join it like this, then let's say negative positive. This kind of polarity is there. If I join it like this, polarities रिवर्स हो जाती हैं, पॉजिटिव उधर नेगेटिव इधर, विदाउट एक्चुअली हैंडलिंग एंड चेंजिंग द बैटरी. मतलब अभी तो मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम में मुझको क्या करना है, पोलैरिटी चेंज करने के लिए ये मैंने बनाई एक पोलैरिटी, एंड दिस इज हाउ वी ड्रॉ द नेक्स्ट पोलैरिटी. ठीक है, लेकिन इन प्रैक्टिकल सर्किट में हाउ डू यू चेंज द पोलैरिटीज, देयर इज अ डिवाइस, देयर इज अ स्मॉल स्विच दैट यू कॉल एज कम्यूटेटर. Sir, ejection will stop or not when I becomes zero? That's a good question. Ejection होता रहेगा मोहित, ejection होता रहेगा, but electrons won't be able to reach the opposite end. देखो, if the light is coming, सोचो, imagine करो, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, but they are not able to reach the opposite end. So no current is generated in the circuit, but yes, electrons तो eject हो रहे हैं ना भाई. हाँ या ना, समझ में आ रही है बात? All of you? Yes. So now let's get ahead. Effect of potential on photoelectric current. Now see, this is positive potential, this is negative potential. ठीक है? वैष्णवी उनका सवाल ये था कि अगर हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, if you apply negative potential, what happens if you apply negative potential? Something like this. क्यों वैष्णवी, नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से क्या होता है सर्किट में? नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से सर्किट में क्या होता है वैष्णवी? नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से सर्किट में क्या होता है बेटा? ये विशाखा है. ओके, दैट्स विशाखा. वैष्णवी, इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल व्हाट हैपेंस? एनीवेज उसका माइक काम नहीं कर रहा है, उसकी तरफ से मैं जवाब दे देता हूं कि सर इफ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल, द इलेक्ट्रॉन्स फेस अपोजिट फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स फेस रिपल्शन. इफ यू अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ओवर हियर इन पॉजिटिव एयर, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलना चाह रहा है उस पर रिपल्शन लगेगा, हाँ या ना? ओके, सो डेफिनेटली देयर वुड बी रिपल्शन. इफ यू इंक्रीज द नेगेटिव पोलैरिटी, रिपल्शन इंक्रीज होगा, और एक सर्टेन लेवल ऑफ पोटेंशियल पे इतना रिपल्शन बढ़ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ना चाह रहा था नहीं बढ़ पाएगा आगे. दैट मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तरफ से फ्रॉम एमिटर, इट वोंट बी एबल टू रीच द कलेक्टर, एमिटर से कलेक्टर नहीं पहुंच पाएगा, तो करंट सिचुएशन में जीरो हो जाएगा. ठीक है, बट द क्वेश्चन वाज, समवन आस्क्ड द क्वेश्चन कि सर उस समय पे क्या इलेक्ट्रॉन्स का मेटल से निकलना भी बंद हो जाएगा? समझ रहे हैं बात को? बात समझ में आ रही है? What he said that at that time will the electrons also stop getting out of the metal? Yes or no students? अब आप बता सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स मेटल से निकलना बंद हो जाएंगे? डेफिनेटली नो. Why? क्योंकि ये जो लाइट आ रही है ये तो आ ही रही है ना. अरे लाइट तो आ ही रही है, समझ रहे हैं आप बात को? तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे लेकिन एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे. क्लियर? सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ दिस होल सिचुएशन इन वन ग्राफ, देन व्हाट शुड बी दैट ग्राफ? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी, एक एंड पे मैंने ले लिया पोटेंशियल, व्हेन देयर इज जीरो पोटेंशियल, दिस इज पोटेंशियल, दिस इज करंट. जीरो पोटेंशियल पे करंट होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना? इज देयर सम करंट एट जीरो पोटेंशियल? यस, देयर इज सम करंट एट जीरो पोटेंशियल. If you increase the potential, what happens? Current increases, और बढ़ाओ, और बढ़ेगा, और बढ़ाओ, और बढ़ेगा, और बढ़ाओ, और बढ़ेगा, और एक finally saturate हो जाएगा. Okay.
if you increase the potential in opposite direction, the current would decrease. खत्म, zero हो गया. So that value of negative potential at which the current stops in the circuit, at which the current in the circuit is zero, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा, बोलो. उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल. इतना पोटेंशियल लगा दिया कि उसने स्टॉप कर दिया, बोला रुक. ये आ रहा था इलेक्ट्रॉन, मजे से आ रहा है, देखो आ रहा है, स्टॉप, रुक गया बेचारा, वापस चला गया. ठीक है. क्या हर इलेक्ट्रॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से निकलता है? इज एवरी इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी? क्या लगता है आपको? आपके ये विचार जानना चाह रहा हूं मैं. यस और नो? डेफिनेटली नो. पहले ही बता चुका था मैं. मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी डम. नहीं, डेफिनेटली नो. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पगले होते हैं, एकदम डम होते हैं. ये जो है मेटल से निकल के यहाँ खड़े हो जाते हैं. ठीक है. जैसे स्कूल खत्म होता है तो बच्चे नहीं बाहर झुंड लगा के खड़े हो जाते हैं किसी भी शॉप पे, खाने पीने की शॉप पे, वैसे ये लोग भी खड़े हुए हैं. अब इनमें से 2-4 ही क्रांतिकारी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अपनी रफ्तार पे चलते हुए अपोजिट एंड पे पहुंच पाते हैं. ओके. सो द इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर few electrons, let's say 1 out of 1000 which are traveling at a very high kinetic energy and reach the opposite end. बाकी सब क्या कर रहे हैं? यहाँ पे झुंड बना के खड़े हुए हैं. ओके. आइसक्रीम खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं. only 1000 electrons reach the opposite end. Okay, so there must be enough potential to stop this electron. अगर आपने इसको रोक दिया, let's say this is the fastest moving electron, this is the fastest moving electron. So if you stop this electron, बाकी सब तो वैसे रुक जाएंगे. So the definition of stopping potential is also given as, सुनना, the definition of stopping potential is also given as the amount of negative potential required to stop the fastest moving electron is called stopping potential. जो सबसे तेज चल रहा है उसको रोक दो, बाकी सब तो वैसे रुक जाएंगे. याद रखना मेरे शब्द. ठीक है. बोर्ड एग्जाम तक काम में आएंगे, तुम्हारे सारे ग्राफ वगैरह अपने आप बना दोगे तुम अगर ये शब्द दिमाग में रहेंगे. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? जो सबसे तेज चल रहा है उसको रोक दो, बाकी सारे अपने आप रुक गए. पोटेंशियल जीरो तभी भी सिचुएशन में करंट रहेगा. बढ़ाओगे, बढ़ेगा क्या? अनंत तक बढ़ता जाएगा? नहीं बढ़ेगा भाई साहब. एक फिक्स वैल्यू होती है. कितनी होती है वो? सैचुरेशन करंट. ठीक है. सैचुरेशन करंट. ओके. सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. अब बढ़ते हैं आगे. ये बातें हम देख चुके हैं. हाँ, रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. या सो नाउ वी आर ट्राइंग टू प्लॉट द ग्राफ विद डिफरेंट इंटेंसिटीज. ओके. सी सर, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा. हाँ वैष्णवी, मेरे ख्याल से आपने लेक्चर थोड़ा मिस किया है. ये बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओ, करंट बढ़ेगा, और बढ़ाओ, और बढ़ेगा, और बढ़ाओ, और बढ़ेगा, तो क्या बढ़ता ही जाएगा एक लेवल तक. उस लेवल को बोलते हैं सैचुरेशन करंट. ठीक है. Now see, I am drawing this graph for different intensities. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना. Let us consider light with different intensities. ठीक है. यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे करंट है, और आप लाइट जो भेज रहे हैं, the light that you are sending, it is having different intensities I1, I2, I3. Different intensities. I1, I2, I3 and so on. ठीक है. I1, I2, I3 and so on. सुनना बात. But the frequency is same. ठीक है. ओके. इंपॉर्टेंट बात है. फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी. इसको मैं सेपरेटली समझा रहा हूं क्योंकि ये बच्चों को पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद भी 99% बच्चों का ये कंफ्यूजन होता ही है. I don't want you to be among those 99% students. Okay. Frequency versus intensity. एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहा हूं. सब लोग हैं यहाँ पे? लैग हो गया क्या? हेलो. इज इट लैगिंग? लैग हो रहा है क्या? हेलो. किया मैंने, अब नहीं होगा लैग. ठीक है. नाउ लिसन व्हाट आई वाज सेइंग. फ्रीक्वेंसी वर्सेस इंटेंसिटी. मेरी बात सुनो.
yesterday I gave you a situation कि आप लोग सोच के बैठे थे क्लास में कितने रुपए लेके उठना है, कितने पैसे मिलेंगे तो हम उठ जाएंगे क्लास में से, कितना अमाउंट हमने डिसाइड किया था, कितने पे हमारा डिस्कशन हुआ था, 100 रुपए पे, 1000 रुपए पे हुआ था, सॉरी 10 रुपए नीलाभ, जो 10 रुपए में कैसी बात कर रही हो यार, इतना भी बेकार नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल 10 रुपए के लालच में आप क्लास छोड़ दोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वेरी बैड। हाँ ठीक है, अच्छा 10,000, ओके, तो 1000 रुपए की बात हुई थी, लेट्स से कि 1000, चलो जोक्स अपार्ट, लेट्स से 1000 रुपए की बात आपकी हुई थी, है ना। एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, ये बच्चे बैठे हुए सारे, रामलाल, श्यामलाल, जयंती लाल, ऐसे 50 बच्चे अलग अलग बैठे हुए क्लासरूम में। नाउ व्हाट हैपेंस, ये बाहर से जो है इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाता है, कौन आ जाता है, चिंटू। चिंटू कितने रुपए लेके आया है, लेके आया है वो, ठीक है, तो क्या काला ले लें, राम काला, राम पीला, राम हरा, ठीक है, ओके सी, ये लिफाफे लेके आया है जो चिंटू है ना, इसके हाथ में लिफाफे हैं 1000 रुपए के। लिसन, ही हैज 10 एनवेलप्स, 10 एनवेलप्स, हर स्टूडेंट को एक एनवेलप चाहिए, समझना मेरी बात को, देखना इसको मैं फोटोन इलेक्ट्रॉन से कैसे रिलेट करूंगा, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। 10 एनवेलप से, ओके, हर स्टूडेंट एक एनवेलप ले सकता है, बट एवरी एनवेलप कंसिस्ट 900 रुपीज। क्या कोई भी स्टूडेंट एनवेलप एक्सेप्ट करेगा, क्या कोई भी स्टूडेंट एनवेलप एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। वही बात है कि लाइट आई, सुनो मेरी बात, लाइट आई, उसमें काफी सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते थे, बट द फ्रीक्वेंसी वॉज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिला क्या, नहीं मिला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिला, नहीं मिला। प्लीज आंसर माय, व्हाट इज योर क्वेश्चन विजेंद्र, व्हाट इज योर क्वेश्चन। ये बात समझ में आई क्या, कोई करंट सिचुएशन में मिला, नहीं मिला। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सुनना मेरी बात ध्यान से, अरे तो कॉपी पेस्ट करो ना यार, अब क्या ऊपर जाओ पढ़ने, कैसी बातें करते हो, जल्दी से कॉपी पेस्ट करो ना, इसमें क्या डाउट है। लिसन, नेक्स्ट पॉइंट, अब इनको लगा कि यार 10 एनवेलप कम है, 100 एनवेलप लेके आ गए, यू ब्रॉट 100 एनवेलप्स, you brought 100 envelopes. How many? Why is photoelectric emission not possible at all frequencies? Okay, listen, पहले जो बता रहा हूं वो पूरी बात सुन लो, ये सारे क्वेश्चंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ओके, आप लोग 12वीं क्लास तक आ गए हो, एक कॉमन सेंस की बात होती है कि कोई इंसान बोल रहा है तो पहले उसको सुन लो, जब वो कह दे कि ये बात हो गई है तब आप सवाल पूछो, ठीक है, सवाल पूछने पे तो कोई रोक है ही नहीं ना। आई एम हियर फॉर द नेक्स्ट 10 minutes also after the session. But what I am saying is, if you listen these things carefully, 90% questions तो वैसे ही आपके दिमाग में आ जाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो सवाल क्या है, why is photoelectric emission not possible at all frequencies? Okay, अब एक बात बताओ कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी का, चलो ये बात मैं कम से कम 10 बार डिस्कस कर चुका हूं, इसके लिए आप लोगों ने क्लास डिस्टर्ब तो कर दी है। अब सिंस आपने क्लास डिस्टर्ब कर ही दी है तो मैं आंसर दे के ही मानूंगा। सुनो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी, एच न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, कौन सी एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, हाँ या ना। वी नो दैट देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वर्क फंक्शन, हाँ या ना, हाँ या ना। देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बराबर एनर्जी अगर आपने इंसिडेंट दे दी है, अगर आपने वर्क फंक्शन बराबर एनर्जी दे दी है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, हाँ या ना। सो इफ यू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, डोंट यू थिंक दैट दिस एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं तो आपको नहीं लगता कि एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर एनर्जी डिक्रीज होगी, लेट्स से यहां पे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, लेट्स से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी, इट वाज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको यहाँ पे जो रिक्वायर्ड था वर्क फंक्शन वो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने फ्रीक्वेंसी कम की, आपने फ्रीक्वेंसी कम की, तो ये जो एनर्जी आ रही है ये भी डिक्रीज होगी। लेट्स से ये 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, वर्क फंक्शन कितना था, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब निकल पाएगा क्या इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा क्या, नहीं निकलेगा। गेटिंग द पॉइंट, क्लियर है। So this is the reason that at every frequency photoelectric effect is not seen. अगर फ्रीक्वेंसी आपने एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम कर दी तो जो एनर्जी आ रही है वो डिक्रीज हो जाएगी,
and there won't be sufficient amount of energy to overcome the work function, to overcome the attractive pull of the metal towards the electron. That's why the electron won't be ejected. जाती बात दिमाग में जाती है, ठीक है। और जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज हो रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा, फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है। 95% बच्चे अगर ध्यान से सुन के समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान यहां रखो, मन यहां लगा के रखो। ओके, नाउ सी, एनीवेज ये डाउट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ये डाउट क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे की मैं जो बात बता रहा था वो सुनो। अब मैंने क्या किया, मैंने 1000 लिफाफे भेज दिए, आई हैव लेट्स से 100 लिफाफे भेज दिए। यहाँ पे ये जो इंसान आया है ये 100 एनवेलप्स लेके आया है और हर एनवेलप में 900 रुपए, हर एनवेलप में 900 रुपए, ठीक है। 100 लिफाफे आए और हर एनवेलप में कितने रुपए? 900 रुपए। बच्चों को कितने चाहिए थे निकलने के लिए? कितने चाहिए थे? 1000। तो क्या बाहर निकल पाएंगे? क्या बाहर निकल पाएंगे? कोई नहीं निकलेगा, नहीं निकल पाएंगे हर्षुल। हर बच्चा जो है वो सिर्फ एक एनवेलप एक्सेप्ट कर सकता है, वन स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग टू वन एनवेलप, वन स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग टू वन एनवेलप। इसको रिलेट कीजिए आप वन इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू वन फोटोन से। ये रहे इलेक्ट्रॉन्स जो के अंदर बैठे हुए हैं, वन इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू वन फोटोन, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एनवेलप्स, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एनवेलप्स, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनवेलप्स, अगर आप रिलेट करें इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो एनवेलप का नंबर इंक्रीज करके आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं या फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं? देखते हैं कौन समझ पाता है इस बात को। एनवेलप का नंबर बढ़ा के आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं या फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं? आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं या फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं? आप बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ इंसिडेंट एनवेलप्स, एनवेलप इज करस्पॉन्डिंग टू फोटोन, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से क्या बढ़ता है भाई साहब? इंटेंसिटी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी वालों, फ्रीक्वेंसी जवाब देने वालों, नंबर ऑफ एनवेलप्स आप बढ़ा रहे हैं, you are increasing the number of envelopes, that means the number of photons which are coming, that is increasing, isn't it? बात समझो कि ये, अच्छा इंटेंसिटी क्या होती है? वैष्णवी, व्हाट इज इंटेंसिटी? आपका एक तो माइक काम नहीं करता है, व्हाट इज इंटेंसिटी? सिर्फ वैष्णवी आंसर देंगी और कोई आंसर नहीं देगा, ओनली वैष्णवी विल आंसर। व्हाट इज इंटेंसिटी? वैष्णवी, व्हाट इज इंटेंसिटी? जल्दी बताओ, आर यू देयर? ओनली वैष्णवी इज गोइंग टू आंसर, नो वन एल्स इज गोइंग टू आंसर। इंटेंसिटी क्या होता है? कम से कम 10 बार ये बात डिस्कस हो चुकी है, जल्दी बताइए। वैष्णवी कहां चली जाती है यार? वैष्णवी शर्मा, आर यू देयर? फिर से मुझे वैष्णवी की तरफ से जवाब देना पड़ेगा। चलो विजेंद्र तुम बता दो इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी पूछ रहा हूं बेटा मैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को गोली मारो, फॉरगेट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इंटेंसिटी पूछ रहा हूं मैं, जनरल बात जो कि 9th 10th में कभी ना कभी जीवन में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। आई एम जस्ट आस्किंग दैट थिंग, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं तो कुछ पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इंटेंसिटी शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी क्या होती है? आई एम जस्ट आस्किंग दिस थिंग। अरे बाकी सारे लोग क्यों जवाब दे रहे हो? मैं किसी से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू समवन, ठीक है। नाउ सी, इंटेंसिटी होती है एनर्जी विच इज इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। अब लाइट की एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग होती है? व्हाट डू वी मीन बाय एनर्जी ऑफ लाइट? इट इज करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स, के कितने फोटॉन्स आ रहे हैं। सो इफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज, if number of photons increase or decrease, that means the intensity increases or decreases. इस बात पे हाँ या ना बोलो पहले तो। Intensity is directly related to the number of photons, हाँ या ना, ठीक है। दूसरी बात, if I relate this situation with this situation, ये लिफाफे वाली situation, ज्यादा नंबर ऑफ लिफाफे आ रहे हैं मतलब ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं, तो मतलब लिफाफे का अमाउंट बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? इंटेंसिटी बढ़ रही है, यस और नो? इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ एनवेलप्स, इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग, बट इज द फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट? क्या हर लिफाफे में सफिशिएंट अमाउंट है कि वो निकाल पाए? डेफिनेटली नहीं। कितना चाहिए था? 1000 रुपया चाहिए था, लेकिन कितना रखा है? 900 रखा है। तो क्या निकलेगा? क्या वो छोड़ के जाएगा बाहर?
नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, डेफिनेटली अभिनव, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। सो द पॉइंट इज, अब बात सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूं ये मैं, ठीक है। एक मेटल रखो, एक मेटल रखो, ठीक है, इसके ऊपर फ्लड लाइट्स ऑन कर दो, कितनी भी इंटेंस लाइट भेज दो, इतनी ज्यादा इंटेंस लाइट भेजी, इतने एन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आए, ठीक है, बहुत सारी लाइट आपने भेज दी, फ्लड लाइट ऑन कर दी, इतनी हीट जनरेट हो गई कि मेटल पिघल गया, इतनी लाइट आपने दे दी, लेकिन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग लाइट इज लेसर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये वही बात हो गई कि आपने 1000 लिफाफे भेज दिए, लेकिन हर लिफाफे में 900 रुपए थे, तो कोई भी स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, एथिक्स है उनके खुद के, सोच के बैठेंगे जितना चाहिए उतना चाहिए। वर्सेस दिस इज वन सिचुएशन, अनदर सिचुएशन दैट लेट अस कंसीडर कि आपने बहुत ही फेंट लाइट भेजी, आपने बहुत ही फेंट लाइट भेजी, ठीक है, ये आ गई लाइट, ये आ गई लाइट, ठीक है, ये आपने बहुत ही फेंट लाइट भेजी, फेंट लाइट मतलब बहुत कम इंटेंसिटी, गिनती के नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं इसमें, ठीक है, बहुत ही फेंट, एक मतलब जो सबसे छोटा सबसे सस्ता वाला बल्ब आता है ना, वो जो आपकी घड़ियों में होता है या तो जूते में होता है, 5 रुपए का बल्ब, वो लगा दो, उससे कितनी लाइट निकलती, क्या इंटेंसिटी होती, बहुत कम इंटेंसिटी होती है उसकी। बट इफ द फ्रीक्वेंसी is greater than threshold frequency, if the frequency is greater than threshold frequency, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे, चाहे एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, चाहे 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, लेकिन इजेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट। गया दिमाग में, गया दिमाग में कि लोड आ गया, समझ में आया सबको? लोग बोल रहे हैं 1 एनवेलप कंटेन्स नाउ 1000 रुपीज। हाँ, अब जो लिफाफे आए हैं, अब जो लिफाफे आए, देखो अब बात ऐसी हो गई कि सिर्फ 5 लिफाफे आए, 5 लिफाफे आए, लेकिन हर लिफाफे में 1000 रुपए थे। हर लिफाफे में कितने रुपए थे? हर लिफाफे में कितने रुपए थे? 1000 रुपए थे, ठीक है। तो भले 5 बच्चे निकलेंगे क्लास से, भले 5 बच्चे निकलेंगे क्लास से, लेकिन बच्चे निकलेंगे, दैट इज द पॉइंट। ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? अरे बोलो 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 सभी को। हाँ, अब देखो, अब मैं आपसे अगली बात पूछ रहा हूं, अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इमेजिन करो लिफाफे आए, है ना, चाहे 5 लिफाफे 10 लिफाफे, लेकिन हर लिफाफे में 1000 के बदले 2000 रुपए थे, तो बच्चे भागेंगे, जाएंगे डेफिनेटली। डिफरेंस किस चीज में आ जाएगा? अरे उछलते हुए जाएंगे, बिल्कुल प्रसन्न होके उछलते कूदते नाचते हुए जाएंगे, बिल्कुल, समझ रहे हो? तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, what is the effect of increasing frequency? What is the effect of increasing frequency? The incident energy increases, ठीक है। अब लेकिन वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट था भैया, मेटल का जो वर्क फंक्शन है भाई साहब, मेटल का जो वर्क फंक्शन है फाई वर्क फंक्शन, मतलब मेटल की जो फिक्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, वो तो फिक्स है ना। आपने इंसिडेंट एनर्जी बढ़ा दी, तो बची हुई एनर्जी किस फॉर्म में दिखेगी? रिमेनिंग एनर्जी किस फॉर्म में दिखेगी? काइनेटिक एनर्जी। दैट्स द पॉइंट। समझ गए कुछ बच्चे बिल्कुल सही बात पे पहुंच गए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, दिल जीत लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो जीवन के मजे आ गए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है एकदम, इसमें मजे आ जाते हैं। ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये इंसिडेंट एनर्जी आ रही है। ओके, इफ द इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, देन इट वुड गो इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो एक रिलेशन हम लिख सकते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी आप दे रहे हैं, it is spent in 2 things. Number 1, work function. What is phi? Work function. And the another thing is kinetic energy. Okay. अगर इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ही कम है, मतलब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ही कम है, तो काय की फिर तो कुछ निकलेगा ही नहीं, फिर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? Yes. Okay, this is very important equation. This is very important equation. अब सुनो मेरी बात. Now try to understand. अब देखिए कि अगर आपने इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ाई, तो क्या इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या सिस्टम में करंट इंक्रीज होगा?
सोचना पड़ेगा, थोड़ा रैशनली सोचना पड़ेगा आपको। करंट किस पे डिपेंडेंट था? सवाल सुनो, करंट सिस्टम में करंट किस पे डिपेंडेंट था? ऑन व्हाट फैक्टर करंट वाज डिपेंडेंट? करंट किस पे डिपेंडेंट था? करंट वाज डिपेंडेंट अपॉन दी इंटेंसिटी। अभी हम सिर्फ इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं बेटा। करंट वाज डिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी वाज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है? एनर्जी से रिलेटेड है। इक्वल टू एच न्यू, इक्वल्स टू एच न्यू या एच एफ, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो सुनो मेरी बात। इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी कीपिंग द फ्रीक्वेंसी सेम, सुनो, इंटेंसिटी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी सेम रखी, क्या कहा मैंने? इंटेंसिटी, सोचना पड़ेगा आपको, इंटेंसिटी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी सेम। करंट बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? करंट बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? करंट बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा? करंट करंट अबे इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स विच आर कमिंग वो इंक्रीज कर दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो इंक्रीज हो गए, हाँ या ना? तो डेफिनेटली द करंट वुड इंक्रीज। ये बात समझ में आती है? हाँ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होगी, सेम रहेगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, सेम रहेगी या डिक्रीज होगी? वेरी गुड, समझ गए कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। वो रहेगी सेम। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ डिपेंड कर रही थी फ्रीक्वेंसी पर, और आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखी हुई है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वुड रिमेन सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? सोचो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रोकना है, उसको बोलना स्टॉप। वो सेम रहेगा, बढ़ेगा घटेगा? सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात। द स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs वुड ऑल्सो रिमेन सेम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, शाबाश। तो अब यहां से हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं। द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। देखो ये ग्राफ अब मैं 2 मिनट में तुमको डायरेक्टली रटा सकता था, बोलता था बेटा एनसीईआरटी में दिया, याद कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब आपको इस ग्राफ का मतलब पता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव में आपसे कितना भी घुमा लिया जाए, आप नहीं घूमोगे। These different intensities, I1, I2, I3, I3 is greater than I2, greater than I1, okay? जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट, isn't it? But since the frequency is same, the stopping potential would remain same. The stopping potential would remain same. बोलो समझ में आया कि नहीं आया ग्राफ? जल्दी बोलो, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भाई, सभी लोगों को, ऑल ऑफ यू, क्लियर है? ठीक है। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। दिस इज द कंक्लूजन। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द लाइट सोर्स एंड द एमिटर प्लेट मटेरियल, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? अभी हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी, विजेंद्र को समझ में नहीं आया? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया विजेंद्र? सुनो, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो विजेंद्र, सुनो ध्यान से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आ रहे हैं वो बढ़ेंगे। इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिजेक्टेड वुड इंक्रीज। क्यों भाई, हाँ या ना? सो द करंट इन द सर्किट वुड बी मोर, yes or no? Definitely yes, provided you fix the frequency. आपने frequency fix कर दी है। If the frequency is same, the kinetic energy maximum of the electrons जो निकलते हैं उनकी एक maximum kinetic energy होती है, वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है। फ्रीक्वेंसी फिक्स होने से क्या फिक्स है? जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है वो फिक्स कर दिया आपने। ठीक है, आप सिर्फ उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा या घटा रहे हो। तो अगर आपने काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स कर दी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो उनको रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाना पड़ेगा भाई, वो भी तो फिक्स होगा, और उसी का तो नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। बोलिए विजेंद्र, क्लियर है? बोलो मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं?
Is this thing very clear now? विजेंद्र, हेलो हेलो हेलो। चलो, तो ये तो हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया। हाँ, बस दो ग्राफ और बचे, उसके बाद मैं क्विज दे रहा हूं। सिर्फ 2 ग्राफ और बचे, ठीक है? सिर्फ 2 ग्राफ में बता दूं, उसके बाद मैं क्विज दे रहा हूं। डायरेक्टली अब मैं इसका अपोजिट आपसे पूछ सकता हूं कि बेटा आपने इंटेंसिटी फिक्स कर दी, तो सैचुरेशन करंट फिक्स हो गया, हाँ या ना? और अब अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वो भी इंक्रीज होगा। दैट मींस इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, लेट्स से F3 is greater than F2, greater than F1, so this would be the stopping potential for 3, this would be for 2, and this would be for 1. That's the point. Okay, इतनी सी बात है इस ग्राफ में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। They are making a graph of stopping potential versus frequency. ठीक है? They are making a graph of stopping potential versus frequency. We know that frequency, if frequency increases, stopping potential increases. That means the graph is going to be a straight line, something like this. Okay, lagging तो नहीं हो रही है? Sir, means according to graph, it will become same by increasing slowly from stopping current. क्या कह रही हो बेटा, समझ में नहीं आया? रिया, आप क्या कह रही है, मुझे समझ में नहीं आया। What are you saying? अनम्यूट कर दूं क्या? बना दी है बात तो। अब बोलो रिया, ठीक है, बोलो ना जल्दी। हेलो हेलो हेलो, रिया सो गई क्या? आस्क योर डाउट। पता नहीं क्या हुआ, शर्मा के लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर, मीन्स अकॉर्डिंग टू ग्राफ इट विल बिकम सेम बाय इंक्रीजिंग स्लोली फ्रॉम स्टॉपिंग करंट। नहीं समझ में आ रहा यार तुम क्या बोल रही हो, इसलिए मैंने माइक ऑन किया था। बात ऐसी है कि तुम जो है इंटेंसिटी फिक्स कर दो, सैचुरेशन करंट फिक्स हो जाएगा। फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी देयर वुड बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, एनीवेज, सो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने समझे हैं और अब हम लोग आ रहे हैं क्विज पे। तो ठीक है, क्या डाउट है पूछ लो। अब मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा डाउट। Good evening, sir. हेलो रिया, गुड इवनिंग। Sir, I was asking that the graph will increase slowly by step, as initially it is there on the stopping position. Where? Yeah, this one. ये वाला The ना? previous slide. No, the previous slide. ये वाला? Yeah. This one? Yes, sir. This one? Yeah. What are you saying? That it will Increase ना? I mean, ये पहले तो zero पे है ना? I mean, it is on the stopping potential, right? पहले मतलब नहीं। सी बात ऐसी है, शुरुआत की पोजीशन ये है, दिस इज जीरो पोटेंशियल। ओके, याद करो कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी? दिस इज जीरो पोटेंशियल। इवन एट जीरो पोटेंशियल वी हैड सम करंट। फिर आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, करंट बढ़ा एक सर्टेन लेवल तक, है ना? आफ्टर दैट आपने बैटरी की टर्मिनल उल्टे कर दिए। So now you are giving opposite potential and finally the current ceased. Okay, this is zero potential. Sometimes the current will be same ना? All the 3 currents will be at the same position, right? Current will be at the same position in what? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो? Okay. What are you saying? Listen, I got what you are saying. You are saying that this graph should be like this, ऐसा, मतलब एक ही पॉइंट से ऐसा कुछ बोल रही हो क्या? मतलब ये जो अलग अलग लेवल्स हैं ये सेम होने चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? Yes, sir. हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन लाइट्स की इंटेंसिटीज अलग अलग है ना, 1 2 3 की इंटेंसिटीज आर डिफरेंट। सो डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स वुड बी स्ट्राइकिंग द सरफेस, सो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इजेक्टेड इवन व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल। दिस इज द कंडीशन ऑफ नो पोटेंशियल। ठीक है? Okay. इसलिए जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसके लिए करंट ज्यादा। क्लियर? Yes, sir. ओके, और किसका डाउट है? विजेंद्र का डाउट है, विजेंद्र को कर देते हैं म्यूट। हाँ विजेंद्र, पूछो। Sir, how can we show the variation of photoelectric current with the collector plate potential for different intensity? फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ
photoelectric current with collector plate potential for different intensities. हाँ तो यही तो, ये ग्राफ और क्या बता रहा है, ये और क्या बता रहा है, ये देखो ना, ये जो अपन लोगों ने बनाया है, दिस इज करंट वर्सेस पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज. Sir, और but क्या करें, frequency of sir, but same frequency of incident radiation. सेम फ्रीक्वेंसी पे ही डिस्कस कर पाएंगे. इफ यू इवन वेरी द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी टुगेदर, तो इतनी क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी. वी वोंट बी एबल टू ड्रॉ इट इन द ग्राफ इफ यू इंक्रीज बोथ टुगेदर. Sir, and Okay. if we reverse it then? रिवर्स मींस व्हाट, किसको रिवर्स करते हैं अपन? So means in collector plate potential. the intensity and we change the frequency. You mean this? Yes, sir, for different frequencies but same हाँ, intensity. ये ग्राफ बन जाता है ना. देखो इंटेंसिटी फिक्स करते, if you fix the intensity, that means the saturation current will be same. But for different frequencies, the different maximum kinetic energies will be associated with electrons. जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ना, उनकी जो maximum kinetic energy वो चेंज होगी. And that's why the stopping potential would change. Stopping potential क्या होता है बताओ? What is stopping potential? Stopping So potential stopping, मतलब sir, stopping potential, I think, sir, one stopping potential, sir, I know, but पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल. किसको स्टॉप करने के लिए बेटा, किसको स्टॉप करना चाह रहे हो आप? हम किसको स्टॉप करना चाह रहे हैं? मुझको स्टॉप करना चाह रहे हैं, आपको स्टॉप करना चाह रहे हैं? नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना sir, चाह रहे हैं. electrons. जो सबसे तेज भाग रहा है उसको रोक दो, काम हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. ये जो ग्राफ हमने बनाया ना सामने, विजेंद्र, क्लियर है? Yes, sir. ओके, नाउ सी क्विज टाइम. फाइनली बहुत देर से क्विज कर रहे थे बच्चे, अब देखते हैं क्विज. सो दिस इज द क्वेश्चन. रे पीठ दुख गई आज तो, गला भी दुख गया, पीठ भी दुख गई. एनीवेज, एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, 4 ऑप्शंस हैं. कितना समय चाहिए? 60 सेकेंड्स. क्यों, कितना टाइम दूं? 10 सेकेंड, चलो 30 सेकेंड देता हूं बस. 45 ले लो, लेकिन सही आंसर देना. अरे स्लाइड लोड हो रही है क्या? ओ हो, स्लाइड इज लोडिंग. Now is it visible? स्लाइड विजिबल है? वेरी गुड. मोहित, उमेश, हर्षुल, खुशी, अलसा, विज्ञान, निलब्जो, अनन्या, रिया, सीनम. 80% बच्चों ने सही जवाब दिया. 20% की मैं शक्ल देखना चाहूंगा कि क्या कर रहे हैं ये लोग जीवन में. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस. 1001वीं बार मैं बोल रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फोटो करंट बढ़ता है. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू. द कर्व ए बी सी एंड डी शो द वेरिएशन बिटवीन द अप्लाइड पोटेंशियल एंड द फोटो करंट एट 2 different intensities I1 and I2, in which figure is the correct variation shown? Current versus potential. Can't see the slide. यार ऐसा क्यों हो रहा है यार, तुम स्लाइड क्यों नहीं देख पा? Are the slides visible now? भाई स्लाइड दिख रही है क्या? हाँ तो पढ़ लो इसको, रिफ्रेश करके देखिए एक बार, ऑल ऑफ यू. हाँ तो टाइम दिया है ना, अभी मैंने टाइम देके तो रखा है क्विज स्टार्ट करने के पहले. टाइम देके तो रखा है. आई एम गिविंग 10 seconds. आफ्टर दैट आई वुड स्टार्ट द क्विज. ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्विज.
A, B, C, D. The time starts now. हम तो सॉल्व करो ना, आंसर तो बताओ। तो आंसर नहीं बताओगे? हॉटस्पॉट है तो सिर्फ क्विज का ही आंसर दोगे क्या? चैट में नहीं बताना है, मार्क कर दो। आफ्टर दैट आई वुड बी आस्किंग कि किस किस का सही था, तब मुझे बताना सही था या नहीं। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स। 90% बच्चों ने जवाब दिया, 100% के आंसर्स चाहिए मुझको। क्विकली। Okay, so finally the time is up. Okay, see, 92% students gave the correct answer. हाँ भाई, किस किस का सही था ये? किस किस का आंसर बी था? किस किस का आंसर बी था? नीलब्जो का, अभिज्ञान का, सूरज का, रिया का, आंचल का, खुशी का, दिव्या, हर्षुल, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेरी गुड, खुशबू, अभिनव, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। देख चुके हैं हम लोग ये, है ना, कि इफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, तो जहां पे ज्यादा इंटेंसिटी वहां पे ज्यादा करंट मिलेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो भैया सेम रहेगा। व्हाई? फ्रीक्वेंसी इज सेम। जब तक वो बोले नहीं कि फ्रीक्वेंसी अलग है, तब तक आपको सेम लेके चलना है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अंकिता को? ऐसा कैसे हो सकता है यार? मैं भी रिफ्रेश कर रहा हूं, आप भी रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आ गए अपन क्विज पे। नाउ वी आर हियर ऑन अ क्विज। Which of the following is dependent on the intensity of incident radiation in a photoelectric experiment? स्लाइड दिख रही है? स्लाइड विजिबल है स्टूडेंट्स? हाँ, पढ़ लिया सवाल? स्लाइड विजिबल नहीं है क्या? आप बात कर रहे हो यार, स्लाइड विजिबल नहीं है, फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब विजिबल है? क्वेश्चन विजिबल है? पंद्रह सेकेंड नीलब्जो हो चुके हैं, ठीक है, फिर भी मैं 10 सेकेंड और दे रहा हूं, सो दैट यू कैन नॉट गिव मी एन एक्सक्यूज कि आपने टाइम नहीं दिया। टेक योर टाइम, मैं क्या मना कर रहा हूं? ठीक है, नाउ आई एम गिविंग 45 seconds to answer the question. दे दूं? स्टार्ट। लास्ट 10 seconds. ऑल ऑफ यू जल्दी आंसर दो। ओके, सो लेट्स चेक। खुशी ने काफी जल्दी जवाब दिया, अभिज्ञान ने, उमेश, शाइना, अभिज्ञान, शाइना, नीलब्जो, दिव्या, अपूर्वा एंड केशव, इन लोगों ने सही जवाब दिया। 62% गिव द करेक्ट आंसर, नियरली 63। ठीक है, तो क्या गलती की समझते हैं। Which of the following is dependent on the, very good Riya, congrats. सेनम का भी करेक्ट था, गुड। मोहित को नहीं दिख रहा था। मोहित क्यों नहीं दिख रहा था भाई? अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा क्या? मोहित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
हेलो 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 मोहित। दिख रहा है सर अब। हाँ तो अब बताओ क्या जवाब होगा। पता ही नहीं सर क्या है, कुछ पता ही नहीं है, अभी अभी दिखना ही शुरू हुआ है, आप पूछे हो तब। हाँ तो पढ़ो ना, मैं बता रहा हूँ ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ऑप्शन सर। क्या इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटेंसिटी, वर्क फंक्शन, अमाउंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर से बता रहा हूँ, इंटेंसिटी पे। हाँ, एक ऑप्शन है वर्क फंक्शन, Yes, एक sir. ऑप्शन है करंट, एक ऑप्शन है स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक ऑप्शन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट सर। हाँ तो बिल्कुल सही जवाब। लेकिन सर हाँ, ऑप्शन कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे तो मेरे पास। कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे सही जवाब दे दिया, छा गए तुम तो। सब लोगों ने आवाज सुन ली तुम्हारी। क्या कीजिएगा इस धनराशि का। ठीक है, तो सही जवाब है करंट, ठीक है। अंकिता का भी करेक्ट है, वेरी गुड अंकिता, शाबाश। और ये जो लोगों ने मिसक्लिक कर दिया ना, बहाने मत मारो। मिसक्लिक क्यों किया? मैंने बोला मिसक्लिक करने का, ऐसा थोड़ी होता है। सी नाउ सी देयर इज अ न्यूमेरिकल फॉर यू ओवर हियर। वर्क फंक्शन इज गिवन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट if two photons each of energy 2.5 electron volt are incident on its surface, ठीक है, will the emission of electrons take place? लॉजिकल सवाल है, बिल्कुल लॉजिक। मैं बता चुका हूं इसको, ठीक है, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये एक मेटल बैठा हुआ है, ये रहा मेटल, ठीक है। मेटल सोच के बैठा है कि मुझको कितनी एनर्जी चाहिए, लिफाफे में कितना अमाउंट होना चाहिए, लिफाफे में होना चाहिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अमाउंट, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कुछ लोग चैट में। हाँ, पैसे कम पड़ गए, कितने भी लिफाफे ले आओ, बच्चे जो हैं ईमानदार हैं, वो अमाउंट से कम में नहीं उठेंगे और 2 लिफाफे भी नहीं उठाएंगे। बच्चे जो है तुम्हारे जैसे नहीं है कि ठीक है हमको तो 2 लिफाफे दे दो, हम समझ लेंगे, आपस में निकल जाते हैं अभी क्लास से। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नहीं होगा एमिशन। ओके, दिस इज द आंसर, देयर वोंट बी एनी एमिशन। ओके, नाउ लेट्स गेट टू अ क्विज। क्विज पे आते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, 4 ऑप्शंस देके रखे हैं। क्विज है, क्विज, ठीक है ना, क्विज है ये। हाँ तो टाइम दे रहा हूं ना, मैं मना कर रहा हूं क्या? टेक योर टाइम, 20 सेकंड ले लो। डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल, डिपेंड्स ऑन बोथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ द कैथोड, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। पढ़ लिया, समझ लिया। अब समय देता हूं मैं 45 सेकंड का। अभी भी वेट, अब किस बात का वेट करना है? डिनर विनर करके आंसर दोगे क्या? हाँ तो सब टाइम, क्विज का टाइम किस लिए होता है? क्विज की घड़ी में सोचो, तब तो प्रेशर बिल्ड होगा, तब तो मजा आएगा। चलो ठीक है, 5 सेकंड और वेट कर लेता हूं, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। Last 10 seconds. Quickly. Okay, so here we go. जवाब काफी लोगों ने काफी जल्दी दिया, अब देखना पड़ेगा सही किसने दिया। दिव्या, अभिज्ञान, नीलब्जो, निकिता, 10 में से ये 4 लोगों ने सब सही जवाब दिया शुरुआत में, और टोटल 55% gave the correct answer. अभिज्ञान कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रणव कॉन्ग्रेचुलेशंस, हर्षुल का भी सही था, 3 जवाब सही दे दिए इन लोगों ने बैक टू बैक, वेरी गुड, हैट्रिक लगा दी, वेरी गुड अंकिता, शाबाश। स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरी गुड राज द्विवेदी, नशरा खान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल शब्द सुनते से आपके दिमाग में आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट नहीं है? किस पे डिपेंडेंट नहीं है? इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑप्शन समझते हैं, ओके। डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, गलत। डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। डी क्या है, सही है कि गलत है? गलत है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमको बी और सी में से समझना है। डिपेंड्स ऑन बोथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल, ओके। ये दोनों बातों पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे भी डिपेंड करती है, और जो मटेरियल है, बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शंस, so the kinetic energy would be different for different materials, ठीक है। वही तो मैं बता रहा हूं हर्षुल। क्या आपने मटेरियल मेटल ए लिया, ये मेटल ए है और इसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने एनर्जी भेजी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी। इसके बाद आपने मेटल ले लिया बी मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने एनर्जी कितनी दी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ, अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ विजेंद्र, और क्या बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से। सुनो अब बात, सब लोग सुनो। सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? ठीक है, किसी का माइक ऑन कर लेते हैं जिसको सुनाई दे रहा हो। ठीक है, रिया आवाज आ रही है क्या? कोई भी एक बच्चा मुझे बता दो। माइक ऑन आधे लोगों का होता नहीं है। रिया का माइक ऑन हो गया। हेलो रिया, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, जब समझ आते जाए तो हाँ बोलते जाना, ठीक है। सारे बच्चों को तुम रिप्रेजेंट कर रही हो। नाउ सी व्हाट आई एम सेइंग, कंसीडर अ मेटल ए। उसका मेटल का वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आपने इंसिडेंट लाइट भेजी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो एडिशनल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो आपने एनर्जी दी है वो किस फॉर्म में दिखेगी? एडिशनल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने ज्यादा एनर्जी दे दी, ठीक है, आपने ज्यादा एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगी, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगी? यस सर। हाँ, अब आपने इस मेटल को हटा दिया, आपने इस मेटल को हटा दिया, आपने दूसरा मेटल लिया। इस मेटल का कुछ दूसरा नाम है, मेटल बी बोल दो। इंसिडेंट एनर्जी उतनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, लेकिन इस मेटल का वर्क फंक्शन अलग है, इस मेटल का मटेरियल अलग है, कैथोड का मटेरियल अलग है। इस मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पहले वाले का कितना था? 3 था। तो काइनेटिक एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग थी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? एडिशनल कितनी दी आपने एनर्जी? 2 की रिक्वायरमेंट है, आपने 4 दे दी। एडिशनल कितनी दी एनर्जी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 2 हो गई, हाँ या ना? रिया को आवाज नहीं जा रही है, कोई बात नहीं। हाँ तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, हाँ या ना? जल्दी से बोलो हाँ या ना। क्यों भाई विजेंद्र, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर आ रही है। पहले काइनेटिक एनर्जी थी 1 थी, अब कितनी हो गई? 2 हो गई। यस सर। मेटल चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर हो गई। तो मतलब मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ सर। हाँ, तो बात समझ में आई तुमको कि नेचर ऑफ कैथोड पे कैसे डिपेंड करता है? नेचर से हमारा मतलब है वर्क फंक्शन। अलग अलग नेचर होगा मेटल्स का, तो अलग अलग वर्क फंक्शन। थोड़ा थोड़ा आया। इसमें क्या थोड़ी, अब क्या थोड़ा थोड़ा आया? अब तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भैया मेटल का मटेरियल अलग कर दिया आपने, वर्क फंक्शन चेंज हो गया। वर्क फंक्शन चेंज हो गया,
आने वाली एनर्जी सेम है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। काइनेटिक एनर्जी ही चेंज हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है वो अलग अलग लगेगा। पहले मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी है 1000, उसके करस्पॉन्डिंग आपको पोटेंशियल लगाना पड़ा लेट्स से कुछ v अमाउंट का। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर से v अमाउंट ऑफ पोटेंशियल लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। नो सर। क्रिस्टल क्लियर कि थोड़ा थोड़ा यस क्लियर? सर, पूरा आ गया, पूरा पूरा आ गया, ऐसा पूरा आना पूरा चाहिए। क्लियर। थोड़ा थोड़ा समझने के लिए थोड़ी बैठे हो। अब सी, ये बात क्लियर है सबको, है ना? तो इसका आंसर आएगा सी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्विज, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, कोई भागेगा नहीं अभी, कोई भागने नहीं वाला है। If in a photoelectric experiment the wavelength of incident radiation is reduced from 6000 angstrom to 4000 angstrom, देखो मेरी बात सुनना, वेवलेंथ चेंज की मतलब बाय डिफॉल्ट आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू एच न्यू, इसी फॉर्मूले को हम लोग एच सी बाय लैम्डा भी लिखते हैं, ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी और लैम्डा कैसे रिलेटेड होते हैं? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। सी तो कांस्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन लैम्डा। और किस तरह से डिपेंडेंट है? इनवर्स रेशो में, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। क्विज के आगे 30 सेकंड दे दो, फिर टाइमर 30 दो, टाइमर में ज्यादा मत दो। अच्छा, जैसा आप बोले नीलब्जो मैडम, डन। और कोई आदेश? तो 30 सेकंड ले लो पहले, तो फिर स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड ले लो। अच्छा नीलब्जो सर, क्लियर? क्लियर है? 30 सेकंड ले लो। ये देखो रिया को कितनी बातचीत करनी है। नीलब्जो वेयर आर यू फ्रॉम? अरे अभी तुम ये पहले इधर ध्यान दो ना। ये देखो, इसको क्विज में पढ़ने में इसका मन नहीं लग रहा है ना नीलब्जो का। आंसर पहले देगा, मैं पूछूंगा उसका आंसर नहीं देगा, क्विज में चैट में आंसर पहले देगा। अब मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है? स्टार्ट। ओके, क्विकली ऑल ऑफ यू। लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके, तो देखते हैं कौन लोग सोच पाए, कितने लोग सोच पाए इस बात को। वेरी गुड। अनिरुद्ध, खुशी, दिव्या, हर्षुल, अभिज्ञान, मयंक, क्षितिज, वैष्णवी, इन लोगों ने सही जवाब दिया और काफी जल्दी जवाब दिया। मतलब कि बच्चों को बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं, मेरा पढ़ाना सफल हुआ। नियरली 75% गिव द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सेनम। नाउ सी, पॉइंट में समझाता हूं, व्हाट इज द पॉइंट। वेरी गुड अंकिता, शाबाश। So the wavelength decreases if the wavelength decreases the frequency increases। अभी अभी आपको मैंने बताया लैम्डा और फ्रीक्वेंसी अपोजिट रेशो में है, ठीक है? कोई बात नहीं वैष्णवी, आपको कुछ समझ में नहीं आया वो बात आप बता रही हो, लेकिन इस तरह से जीवन में कभी आएगा भी नहीं, ये भी बात मेरी समझ लो। ये कड़वा सच है। अगर आप सिर्फ ये ही सोच के बैठे हो कि मुझे सिर्फ एक ही बात बार बार बोलनी है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। ओके, उसके लिए आपको चाहिए होती है पहले सही इंटेंशन, कि आप टीचर से कनेक्ट कर पाओ, बात समझो, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग पूछो। इतनी सी बात होती है। आपसे पूछा जाता है, आपको समय दिया जाता है, यू नेवर आस्क द क्वेश्चन, you just keep on saying one thing, so let it be. If lambda decreases, frequency increases. If the frequency increases, the energy, the kinetic energy would increase, and if the kinetic energy would increase, definitely the stopping potential would increase. So answer would be B. अब देखते हैं लीडर बोर्ड। Let's see the leaderboard now. Congratulations अभिज्ञान 300 पॉइंट, दिव्या 300 पॉइंट, हर्षुल 260,
नीलबजो 220, क्षितिज, शान्या, निकिता, वेरी गुड, खुशी, अंकिता, खुशबू, रिया, अपूर्वा। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, आप लोगों के जिन लोगों के लीडर बोर्ड में पीछे अभी रैंकिंग है, आई वांट देयर रैंकिंग टू बी अहेड, और जो लोग लीडर बोर्ड में नहीं है, नेक्स्ट सेशन में मैं उनको लीडर बोर्ड में देखना चाहता हूं। ठीक है, अब डाउट्स स्टार्ट कर दो, अब डाउट्स पूछना स्टार्ट कर दो सब लोग, जिसको जो भी डाउट्स हैं। वेरी गुड अंकिता, कांग्रेट्स। किस किस के डाउट्स हैं स्टार्ट कर दो। टेलीग्राम ग्रुप तो क्रिएटेड है ऑलरेडी, टेलीग्राम की आईडी मैं आपको दे चुका हूं, इट्स फिजिक्स केके, फिजिक्स केके, फिजिक्स केके। जिसको जो भी डाउट्स हो पूछिए। नीलम जो बहुत सारे बच्चे जो है लीव कर चुके हैं, इसलिए हम लोग अभी नहीं दे सकते क्विज। नेक्स्ट टाइम पे मैं इसके आगे के क्वेश्चंस क्रिएट जो है स्टार्ट करूंगा। रिया, तुमको डाउट्स थे ना, अब तुम जो है पंचायत कर रही हो, क्यों? यू वर सेइंग दैट यू हैड डाउट्स। अभिज्ञान का डाउट है, अनिरुद्ध वांट्स टू सी पैब्लो। देखता हूं किधर है वो। Definitely, Saransh, you can leave. Saransh, so Saransh, sir, are you CT okay? Really sorry, sir. I thought there is some student. Sir, you definitely you can leave, Saransh, sir. Sir, I have doubts in ray optics. Okay, ray optics का डाउट है क्या बेटा? तो you do one thing ना, आपके जो भी डाउट्स है ना उनके पिक्स खींच के you just send me on this. आप एडेड हैं टेलीग्राम पे रिया? No, sir. So this is Telegram ID. Okay, you can directly click the doubts and send me there. Okay, we can discuss it. Or we would be having the revision of ray optics also. So at that time also we can discuss it. Okay. Okay, sir. Thank you. पैब्लो आईडी ढूंढ नहीं पाया, आईडी ढूंढ नहीं पाए। फिजिक्स के बाद के लिखो डायरेक्टली बिना स्पेस के, एग्जैक्टली सेम में। ठीक है, रुको मैं देखता हूं पैब्लो किधर है, शायद दिख जाए। लेट्स सी। सारांश सर, यू मे डेफिनेटली लीव, है ना, आपका दूसरा क्लास है, यू प्लीज यू कैन गो। हाँ, तो पैब्लो देखता हूं है कि नहीं है। पैब्लो नहीं है, पैब्लो पैब्लो इज गॉन फॉर अ वॉक। पैब्लो घूमने गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में दिखाऊंगा। ओके, पक्का। चलो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय। टेलीग्राम में मेरा डीपी होगा, आपको दिख जाएगा। ओके, मैं दिख जाऊंगा टेलीग्राम में। ओके, बाय बाय।